السلام علیکم. پروگرام خلیج ٹائم کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ طارق اقبال سرزمین کویت سے حاضر ہے. تیری محبت میں موت آئے اس سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ ایک جان کیا ہے، ہزار ہوں تو ہزار پہ اثار کر دوں. ناظرین، کل جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ 7 ستمبر تھی اور یوم دفاع منایا گیا، اور ہمارا جو آج موضوع ہے وہ بھی 1965 کی جنگ کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹس کیا ہوں اور افواج پاکستان کا کیا کردار رہا، اور یہ ہمارے موضوع ہوں گے. تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان بہت ہی اہم ہماری پاکستانی مشاہیر پاکستان ہیں، جن میں جناب سہیل امان صاحب جو سابق پاک فضائیہ کے چیف آف ایئر سٹاف رہے ہیں. سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو. اس کے علاوہ ہمارے درمیان جناب محمد عبداللہ گل صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان و کشمیر. سر، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم اور بہت شکریہ. جی. اس کے علاوہ ہمارے تیسرے جو مہمان ہیں وہ محمد بشیر صاحب ہیں جو ہماری ایسے بھی گفتگو کریں گے. ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو سہیل صاحب جو یہاں دو کیا اور تو ایک اور فرینڈ سے وہ شاید گیا تھا، تو بہت خوبصورت شام تھی اور خاصی دیکھنے ملی. انہوں نے اس پروگرام میں جا کے کیا باتیں کی، کیا خطاب کیا، آئیے سنتے ہیں. حضرات، پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے چیف مارشل سہیل امان اپنے F-16 طیارے کو اڑاتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے روایتی انداز میں صدر مملکت کو سلام. ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good evening. It's a pleasure. I'm out of words. اور الفاظ شاید اتنے نہیں ہیں کہ میں ایکسپریس کر سکوں کہ جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، جو ریسیپشن ہے، اگر مجھے ہائپوتھیٹیکلی 100 مرتبہ میں پیدا ہوتا تو میں ایک پاکستانی ہی بن کے پیدا ہوتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. This is a unique country. اتنے چیلنجز اس سارے پیریڈ کے اندر کسی اور ملک کے پاس اگر آئے ہوتے تو ملک کو اتنی بڑی ابیلٹی، ناٹ ود فورس، تمام ملک کے لوگ سب سے کھڑے ہوتے ہیں، پوری نیشن کھڑی ہوتی ہے. ٹوڈے the F-17 aircraft exceeds F-16 in at least 5 domains. بھلے وہ پریسیشن ٹریک کیپیبل ہو، بھلے وہ اسٹینڈ آف مزائلز ہوں، ہم نے ایسی چیزیں اللہ نے، اور سب سے بڑی بات ان میں سے 80 سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ہم امیر نے کہا ہے کہ آپ F-17 اور سپر مشاب کو پاکستان سے یہاں پہ لے کے آئیں، اور ان کو ایک سال میں حیدرآباد بلاری میں اپنا بیس اکتوبر میں جہاز وہاں پہ لگ جائیں گے. لاسٹ نوٹ ہمیں جو انڈسٹری اسے پیچھے تو سمے نہ کر کے اتنے اچھے ویپنز بنا لیے ہیں، اچھے ایئر کرافٹ کو پروموٹ کر لیا ہے کہ ہمیں آنیسٹ تو جب خود الگ ہوتے ہیں الگ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل. آئی نو آئی ہیو ٹیکن لانگ، بٹ دا کائنڈ آف لو دیٹ یو پیپل شاور اینڈ ڈسپلے، آئی ایم آنیسٹلی ویری گریٹفل ٹو ایچ ون آف یو. آپ
लोगों ने जिस एहतमाम से मुझे इज़्ज़त दी है दोनों मरतबा, मेरे लिए बहुत ऑनर। स्पेशली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे शायद वापस चले गए, द वे द चिल्ड्रन वर चार्ज्ड एंड द वे दे वर डेमोन्स्ट्रेटिंग, और जैसे उनकी टीचर्स वगैरह कर रही थी, दैट अगेन शोज एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप बिटवीन ईच वन ऑफ यू। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और खैरियत से रखे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। जनाब सुहेल अमान साहब, माशाल्लाह आप ने कुवैत का दौरा किया और आपको बहुत सी मोहब्बतें मिली, हमने देखा। कैसी फीलिंग्स थी? ज़ाहिर है कि आपके यहाँ बड़े भाई ज़फ़र शेख साहब भी हैं और यहाँ पे बैसी डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को देख के, मिल के आपके क्या ख्यालात थे? आपको कैसा महसूस हो? बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने काफ़ी सारी जो मेमोरीज हैं वो उनको दोबारा से उजागर कर दिया है। कुवैत से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब मैं एयरफोर्स में फ्लाई लेफ्टिनेंट था, यानी कि कप्तान के रैंक पे था, तो उस वक्त मैं पहली मरतबा कुवैत आया। ये वो वक्त है जब फर्स्ट गल्फ वॉर का ज़माना है, तो उस ज़माने से कुछ ऐसा था कि हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। फिर उसके बाद एज एन एयर चीफ मेरा 2 मरतबा दौरा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने हर मरतबा बहुत इज्जत और ऑनर किया है, एंड वो भी मेरे दिल में वो चीज़ बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा जो कुवैती एयरफोर्स के चीफ हैं, वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह थे, और हमने फैसला ये किया था कि कुवैती एयरफोर्स को हम सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेन नहीं करेंगे, बल्कि कुवैती एयरफोर्स के लिए अकेडमी बना के उनको अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे। तो इसलिए मेरे 2 दौरे भी हुए। हमने बहुत सारे मामलात में आपस में, ख़ास तौर पे ट्रेनिंग के मामलात में आपस में ताउन किया। और उसके बाद एक बहुत अच्छा हुआ कि जब कुवैती पायलट्स ग्रेजुएट हो रहे थे, तो अब्दुल्ला जो हैं, जनरल अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उन्होंने उस ग्रेजुएशन सेरेमनी पे एज चीफ गेस्ट रहे। तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। जैसे आपने कहा, मेरे बड़े भाई डॉक्टर ज़फ़र शेख भी वहाँ पे हैं, और वहाँ पे कुवैती कम्युनिटी में जो वेलफेयर का जज्बा था पाकिस्तान में काम करने का, वो मैंने, और हकीकत है किसी और मुल्क में वैसा नहीं देखा। अपने मुल्क से वही लगन, वही लगाव। तो आई थिंक मेरे पास बहुत कम अल्फाज हैं कि जो मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि कुवैत के साथ मेरी एफिलिएशन कितने लेयर्स के ऊपर है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, 65 की जंग के हवाले से ज़ाहिर है हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया, उन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए जो तारीख़ रक़म हो चुके हैं, जिसमें एमएम आलम जो थे उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है, बल्कि एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो एक तारीख़ रक़म की है। सर मैं ये कहूँगा कि 1965 में ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली। अब इस दौर में, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से मुझे बताएं कि अफ़वाज पाकिस्तान और फ़िज़ाई अफ़वाज का क्या किरदार है? बहुत अहम बात यह है कि जो हमारा जज्बा और प्रोफेशनलिज्म था, जज्बे से मुराद अल्लाह पे भरोसा, और जो प्रोफेशनल सर्जिकल ऑपरेशंस हमारी करने की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है। ज़माना बहुत गुजर गया, कॉम्बैट के तरीके चेंज हो गए, लेकिन वो जज्बा उसी तरह है। तो वो जो 65 में सरफराज रफ़ीकी, जिस तरह वो अपनी पूरी जो है, उन्होंने जाके हलवाड़ा पे अटैक किया, जो हैं एक कमोडोर हैदर जो रिटायर हुए, उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे, उन्होंने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें एक मशाल-ए राह दिखाई, और उसके बाद हमारी एयरफोर्स पे हम कारबंद रहे। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन्स के अंदर उनके बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगी हैं। उनके सामने जो यंग पायलट्स भी हैं, वो खड़े होकर प्लेज करते हैं कि हम आपकी रवायात को बरकरार रखेंगे। जब जंग की नौइयत चेंज हुई और हमें बिल्कुल एहसास था कि हमारा हमेशा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो हमसे 3 से 4 गुना बड़ा है। वो फिर टेक्नोलॉजिकली भी वो बेहतर होते रहे, लेकिन हमने अपनी ट्रेनिंग बेसिक लेवल से ये रखी कि हमें 4 गुना बड़े दुश्मन से लड़ना है। और यही वजह है कि भले वो उरी का वाक़या हो कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन, क्योंकि एयरफोर्स बड़ी पिवटल फोर्स है, और किसी भी जंग में अब एयरफोर्स को आपको फ्रंट फुट पे लाना पड़ता है, बिकॉज सारे जो, जैसे आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में देख लें, एयरफोर्स को फिर भी फ्रंट फुट पे आना पड़ा, ताकि वो जो पहाड़ों में छुपे हुए टेररिस्ट थे, उनके हाइड आउट्स और उनके सब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, वो एयरफोर्स के थ्रू सब कुछ अलग हुआ। तो इसलिए
ہم نے اپنی ایئر فورس کی ٹریننگ اس نہج پہ رکھی کہ ہمیں اپنے سے بڑے دشمن کا بڑے آرام سے مقابلہ کریں. میں بہت سمپلی آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم ایک پروگرام میں ہیں یا میں ایئر فورس کا فارمر چیف رہا ہوں. یہ جو 27 فیبرک کو ہوا, مقابلہ ہوا ہی نہیں, کیونکہ ہماری ایئر فورس جس حساب سے پریپیئرڈ ہے وہ اس سے بہت زیادہ کمپلیکس سچویشنز کے لیے پریپیئرڈ ہے. تو ان کو تو بالکل یہ ایک سادہ سی سچویشن ملی اور انڈین ایئر فورس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہم لوگوں نے ٹیکٹکس کیے, ان کے ساتھ کیا ہم نے گیم کھیلی. کہ ظاہر ہے جو ایئر کمبیٹ ہے اس میں دا اسمارٹر سائڈ ونز آلویز. تو بڑا آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ تمام آرم فورسز الحمدللہ, اور خاص طور پہ ایئر فورس کے بارے میں الباؤچ کہ آپریشنلی بہت اچھا پریپیئرڈ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ نہ صرف کہ آپریشنلی پریپیئرڈ ہیں بلکہ اپنے جہاز خود بناتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کسی کے لیے مرہون منت نہیں ہونا پڑتا. صحیح بات ہے سر. یہ جے ایف جو 17 کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ اس کی اپڈیٹ کیا ہے اس وقت, اور ماشاءاللہ یہ ظاہر ہے کہ وہ چائنا کے کوآپریٹ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں اب تک کہ کیا ہماری کیپیسٹی ہو جائے گی کہ انشاءاللہ ہم دوسرے ممالک کو بھی پرووائڈ کریں گے؟ جی, JF-17 ہم آلریڈی ایکسپورٹ کرنا طارق صاحب سٹارٹ کر دیے ہیں ہم نے الحمدللہ اپنے فرینڈلی ممالک کو. ہم 100 سے زیادہ JF-17 ماشاءاللہ آپریٹ کر رہے ہیں, بھلے ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو, ان سب کے اوپر JF-17 موجود ہیں. اصل بات جو اہم ہے, جو سمجھنے والی ہے کہ جب پلوامہ کا بھی اٹیک ہوا تو ہمارے JF-17 اور F-16 مل کے ایک بہت اسٹرانگ ٹیم بنے, اور JF-17 ماشاءاللہ وہ تمام کیپیبلٹیز رکھتا ہے جو کہ F-16 میں ہے, بلکہ 4 یا 5 تو ایسی کیپیبلٹی ہے جو JF-17 میں ایکسکلوسیو ہیں. تو یہ ایک ہمیں بڑی تسلی کا باعث ہے. اگر آپ دیکھیں تو جہاز امپورٹنٹ ضرور ہے, لیکن اس جہاز کو استعمال کرنا یا آپریشنلی امپلوائے کرنا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویسے تو دیکھیں SU-30 بڑا اچھا جہاز ہے, وہ بھی انڈیا کا اس مارکے میں موجود تھا, ان کے جو مراج ہیں وہ بھی تھے, لیکن MiG-21 بھی تھے. لیکن جس ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ملٹری میں کہ جس سیملیس طریقے سے ہمارے لوگ آپس میں انٹیگریٹڈ تھے اور تسلی سے اپنا کام کر رہے تھے جو ان کو کرنے کو ملا, وہ دوسری طرف بالکل نظر نہیں آیا. صحیح, بالکل. اچھا, آپ نوجوان جو نسل ہے, ہمارے نوجوان جو آ رہے ہیں, نئے سٹارز آ رہے ہیں, ان کو ایئر فورس کے لیے آپ کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ملک کی خدمت کے لیے آئیں اور بڑھیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے ہماری نوجوان نسل کو؟ اچھا, ہم لوگ اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں. مجھے یاد ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں, مجھے رائل ایئر فورس کے چیف نے بھی ایک مرتبہ سوال کیا تھا ہم کیسے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. تو میں نے ان کو کہا تھا ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو فوج ہے اس کا جو امیج ہے وہ بڑا ایک اچھا اور بڑا ایڈوانسڈ امیج ہے, بڑا ایک رسپیکٹ کا امیج ہے. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ بلکہ اپنے بچپن میں ضرور پائلٹ بننا چاہتا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جنگوں کے کارنامے دیکھتے ہیں یا ہمارے ہیروز کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے ہاں تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک وقت میں 25 پائلٹ سلیکٹ کرنے ہیں تو ہمارے پاس جو فائنل سلیکشن ہو کے آتے ہیں وہ اس سے کم از کم 4 گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں بس ٹاپ کے لوگوں کو لینا پڑتا ہے. ہمارے پاس موٹیویشن بہت اچھی ہے. ہمارے ینگسٹرز کا ہم لوگ ہر صوبے کے اندر سے بچوں کو لے کے آتے ہیں, خاص طور پہ بلوچستان پہ بہت فوکس ہے, سندھ کے رورل ایریاز پہ بہت فوکس ہے. ان بچوں کو ہم لا کے ہم اپنی گریجویشن پریڈز کے اندر اسکولوں سے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن کو اکیڈمی میں لے کے آئیں, ان کو آفیسرز بنائیں, ان کو فلائنگ میں لے کے جائیں. تو یہ اس لحاظ سے ایئر فورس بہت فوکس کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ہیں ان کو بہت زیادہ ایئر فورس کے متعلق اور ملٹری کے متعلق آگاہ کیا جائے.
बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि जनाब सुहेल अमान साहब मौजूद हैं, उसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब हैं। बहुत ही हमारे सीनियर पाकिस्तानी हैं और अक्सर उनके हम कॉलम्स, उनके इंटरव्यूज़, उनकी बहुत सी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। इसके साथ-साथ वो चूँकि कुवैत का भी उन्होंने दौरा किया था, जब यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से उन्हें दावत दी गई थी, तो एक बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ी यानी खूबसूरती से उन्होंने अपने खिताब भी किया। मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब ने यौम दिफा के मौके पर जो कुवैत आए थे, कम्युनिटी को क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारा पाकिस्तान जो है वो एक तोहफा है, और क्या अजब तोहफा है कि अल्लाह ताला ने महीना चुना तो रमजान का, दिन चुना तो जुम्मतुल विदा का, रात चुनी तो लैलतुल कदर की। मुसलमानान हिंद का इश्क हुआ अल्लाह और उसके रसूल से, एक खित्ता जमीन के लिए जिद्दोजहद शुरू की। हमने ये देखा कि वो मुल्क जो 47 में बना, हमने आजादी हासिल की थी, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, उनको मुल्क मिल गया था, हमने हासिल किया था। एक ऐसी फौज जिसको टूटा फूटा दिया गया, देश सर्वसमानी के आलम में सबसे गंदा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इक्विपमेंट था वो दे दिया गया। और आज शुहदा के ये जो 10 चेहरे आपको निशाने हैदर नजर आ रहे हैं, इसमें 7 अफसर हैं। दुनिया की इतनी बड़ी रेशो अफसर और जवान के मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का खासा है, जहां अफसर आके सीने पे गोली खाता है, वो पीछे खड़ा होता नहीं है। कर्नल सुहेल साहब, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसको मेरे वालिद ने बनाया, जिस आर्मी म्यूजियम का जिक्र आपने किया कि वहां जीप खड़ी है जर्नैल की, उसी आर्मी म्यूजियम के अंदर लिखा है कि फादर ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जनरल हमीद गुल, जिसने कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाई। जनरल साहब भी उस चवेंडा की लड़ाई के अंदर मौजूद थे, और वो चवेंडा की लड़ाई बीबीसी के मुताबिक हिंदुस्तानी टैंकों के लिए कब्रिस्तान साबित हुई। पाकिस्तान के वो लोग जवान जिन्होंने कुर्बानियां दी, किसके लिए? 19 रुपए तनख्वाह थी सिपाही मोहम्मद हुसैन की, 19 रुपए के लिए शहादत दे दी। कौन है यहां देने के लिए तैयार है? अपनी जान जाने आफरीन के लिए सुपुर्द करने के लिए 19 रुपए के लिए कोई जान नहीं देता जनाब, 19 लाख के लिए भी नहीं देता। जान दे जाती है अल्लाह को, उसके नबी के सामने सुरखरू होने के लिए। ये वो जज्बा था। यकीन माने, पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर ना होता या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी मजबूत ना होती, तो पाकिस्तान के कब से बखिए उधेड़ दिए होते हिंदुस्तान ने और इस्तेमार की कुव्वतों ने। एक रियासत मदीना थी, वो आज का पाकिस्तान है। एक रियासत मक्का थी, जो आज का इस्तेमार है, और एक खैबर था, जो आज का इसराइल है और हिंदुस्तान है। तारीख गवाह है, आप लोगों को गवाह बना के कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, इनमें से एक जिंदा रहेगा और वो होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, शहदाए पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी माशाल्लाह। सर अब्दुल्ला गुल साहब, आप इतनी बड़ी शख्सियत जनरल हमीद गुल के साहबजादे हैं, और इतने बड़े बाप के होने के नाते आप चूंकि उनके बेटे हैं, बहुत से चैलेंजेस आपका सामना करना पड़ता होगा। और क्योंकि कभी कभार हमने देखा है कि बड़े बड़े जनरलों के बेटे जो हैं वो गुमनामी के दौर से गुजर जाते हैं, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये मौका दिया
اور آج क्योंकि यौम दिफा के हवाले से ही तकरीबात का एक सिलसिला चल रहा है, कल एयरफोर्स का दिन था और आज नेवी का दिन है, तो मैं उनके शहदा अवाम पाकिस्तान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मेरे लिए ये इससे भी ज़्यादा बायस इफ्तिखार बात है कि आज मैं ज़मीन आसमान का आपने मिलाप करा दिया। आज सोहेल अमान साहब हमारे साथ, एयर चीफ मार्शल साहब बैठे। मैं तो बिल्कुल इनको रिटायर्ड नहीं समझता, जो मर्जी हो जाए मैं नहीं मानूंगा ये रिटायर्ड हैं, ये तो हाजिर सर्विस हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के लिए वर्दी जो है वो उतारी है। इनका जो मिशन है वो तो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनकी काविशों को भी जानता हूँ, उन काविशों को बताया भी नहीं जा सकता। ये वो हीरो हैं जो जिनकी दास्तानें नहीं बताया जाती, बस कुछ लोगों को पता होती है और फिर अल्लाह ताला इनको सुरखरू करता है। लोग बहुत सारे गुजरे, आर्मी चीफ भी गुजरे, नेवी चीफ भी गुजरे, एयर चीफ भी गुजरे, लेकिन एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान साहब को जो इज्जत और मुकाम अल्लाह ताला ने दिया, वो इनकी नीयत और इनकी जज्बे हुब्बुल वतनी और इनके जो इस्लाम के साथ एक कमिटमेंट है उसकी वजह से दिया। मैं यहाँ की बेशक बातें तारीफ कर नहीं रहा, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत एहतराम करता हूँ और इनकी वजह मेरा पाकिस्तान है। आपका सवाल जो है वो बहुत दिलचस्प है। पहले तो मुझे वो तमाम मनाजिर आपने याद करा दिए, बड़ा ज़बरदस्त आपका ये ख्याल है, आप बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। आपने वो तमाम पुरानी यादें जो कुवैत के साथ जुड़ी हुई, गो कि मैं 3 दिन रहा, लेकिन 3 दिन में जिस अंदाज में मुझे मोहब्बत मिली आपसे, इसी तरीके से मेरे उस वक्त के जो होस्ट थे हाफिज शबीर साहब, उन्होंने बहुत प्यार दिया। और अवाम जिस अंदाज में, इतने ज़्यादा अवाम तो पाकिस्तान में हम इकट्ठे नहीं कर पाते जितने कुवैत के अंदर एक तड़प, एक पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जो मौजूद है, जो जज्बा मैंने देखा वो दीदनी था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन तमाम लोगों को नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके लिए दुआगो हूँ। जहाँ तक वालिद साहब का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है उनको अल्लाह ताला ने मुजाहिद इस्लाम का खिताब दिलवाया आलम इस्लाम से, और जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अपना एक उनका मुमताज़ मुकाम है। और मैं समझता हूँ वो एक ऐसी शख्सियत है जो दौरे हाजिर में भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो ख्यालात, अफकार और उनके जो कोट्स हैं वो आज भी दिए जाते हैं, तो वो जिंदा तस्वर करते हैं लोग उनको। और जब अपने दौर में जब उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई थी, तो तब भी वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार अदा करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने क्योंकि हमेशा कहा बरमला कि मैंने पाकिस्तान के लिए कसम खाई थी पीएमए में कि मैं अपने पाकिस्तान का दिफा करूँगा। वो कसम माशाल्लाह जो है वो तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि मेरे आखिरी सांस तक चलेगी, और आप गवाह हैं और सारे आप लोग जानते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ही बहादुर सिपाही बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं, क्योंकि वो हमारे आर्मड कोर के हैं, हमारे रिसाले के लोग हैं, इनके साथ हमारा काली टोपी का रिश्ता है। तो ये भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी वर्दी की कसम जो थी वो निभाई, आखिरी सांस तक। वर्दी उतर गई तब भी उन्होंने निभाया। मैं समझता हूँ कि सिर्फ विरासत वो नहीं होती जो उनकी कोई जायदाद में या उनके किसी और माल के अंदर मैंने हिस्सा ले लिया, असल जो विरासत है वो उनके नज़रियात की विरासत है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस नज़रिए को लेके चलूँ, और ये भी मैं आपके सामने कसम खा के कहता हूँ कि वो कसम साकित नहीं हुई। वो मेरी शक्ल में और इसी तरीके से उनके बहुत सारे चाहने वालों की शक्ल में, जवानान पाकिस्तान की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह वो कसम इंशाल्लाह निभाएंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसने हमें बड़ी इज्जत दी, आज जो कुछ है हम इसी की बदौलत है, वरना किसी हिंदू के घर पे बैठ के मैं जूतियां साफ कर रहा होता, ये मेरी औकात है। इस पाकिस्तान ने हमें जर्नैल भी बनाया, इस पाकिस्तान ने हमें एयर चीफ मार्शल भी बनाया, इस पाकिस्तान ने हमने मुकाम भी दिया, इज्जत भी दी, मोहब्बत भी दी। इस पाकिस्तान के लिए अगर जान जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये तो भाई से सादत होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं तारीख में जिंदा रहना चाहता हूँ, दौरे हाजिर में नहीं रहना चाहता। और सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत दे दे और मेरे से दीन और पाकिस्तान के लिए कोई काम ले ले।
बिल्कुल सही कहा। नाज़रीन, हमारे पार्टिसिपेंट और भी हैं, जिसमें मोहम्मद बशीर साहब भी हैं, और हम जनाब सुहेल अमान साहब से भी कुछ पूछते रहेंगे। कुछ ब्रेक का वक्फा आया, तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी। SBI News is available now on Play Store and App Store. मंशियात एक लानत है। मंशियात का इस्तेमाल एक फर्द को नहीं, पूरे खानदान को तबाह कर देता है। मंशियात की इस लानत से अपनी नस्लों को महफूज रखें। मंशियात से इनकार, जिंदगी से प्यार। नाज़रीन, जंग 65 के हवाले से जहाँ इतनी यादें, जहाँ इतनी कामयाबियाँ मिली और एक तारीख़ रकम जिसमें ने कहा हुई, तो उसमें एक नाम जो है वो मोहम्मद बशीर साहब का भी है, जो गाज़ी हैं, उस जंग में थे। तो हम उनसे सवाल करेंगे मोहम्मद बशीर साहब से कि बशीर साहब हमें बताएं कि वो क्या लम्हात थे जब आप सियालकोट सेक्टर पर दुश्मनों के हमले को नाकाम बनाने के लिए उनको मुंह की खानी पड़ी। तो क्या हालात थे, क्या चीज़ थी, आप हमें ज़रा बताएं, ज़रा ब्रीफली। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया, और मेरे सामने बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं तो एक मुस्किन सा आदमी हूँ। गुजारिश यह है कि मैं 25 कैवलरी का हूँ। इसको आर्मर यूनिट बोलते हैं, इसमें टैंक होते हैं। तो सियालकोट से हम निकले, सियालकोट में थी हमारी यूनिट। हमारा कर्नल था निसार अहमद। तो हम चिमंडे आए। जब हम सिटी से निकले तो लोगों का इतना हजूम कि टैंकों में लोग सामान फेंकते थे, मिठाइयाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंकते थे। उनको पता ही नहीं था कि हम लड़ाई पर जा रहे हैं, बस खुशी में। तो उधर से हम चिमंडे पहुंचे। रास्ते में इसी तरह होता रहा, चिमंडे आए, चिमंडे से आगे फिर एक जगह थाना फ्लोरा, जानते हैं ये। तो उधर हमारी यूनिट लग गई, एक स्क्वाड्रन एक तरफ, दूसरा तीसरा। रात को जब हम खाना खाया तो हमारे एक मेजर अफंदी साहब थे, वो कोयटा पे थे। तो एक ट्रांजिस्टर था मेरे पास, जो मेरा भाई कोयत में रहता था, वो लेकर गया। वो था, हम खबरें सुन रहे थे BBC की खाना खाते। तो वो मेजर साहब आए, वो कहते हैं स्टार्ट अप और मार्च अप। बस इतनी बात उन्होंने बोली कि स्टार्ट करो टैंक और मेरे पीछे आ जाओ। हम उधर से फिर स्टार्ट किया, चिमंडे आए। चिमंडे वही जो लोग बड़े जोशो खरोश से हमारे साथ चीज़ें दे रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। वहाँ से हम पसरूर से फिर नारोवाल चले गए। जब हम चिमंडे से निकले हैं ना, तो इंडिया ने मकारी ये की कि हमला कर दिया। हम तो नारोवाल से फिर वापस पसरूर आए। पसरूर सुबह जब आए तो हमारे कर्नल साहब सड़क पर ही खड़े थे। टैंक सड़क पर ही होते हैं, आपको पता है, टैंकों की जो है जाना तो आसान बात नहीं है। तो वो ब्रिगेडियर वाज साहब थे, वो आगे कर्नल साहब को बोलते हैं, कर्नल दुश्मन तो चिमंडे पहुंच गया। तो कर्नल साहब बोलते हैं, हम पास ही खड़े थे, ऐसे नाश्ता कर रहे थे सुबह का टाइम। पसरूर में एक स्कूल है रोड के ऊपर ही। तो उन्होंने बोला कर्नल साहब ने, कोई बात नहीं। उधर से फिर स्टार्ट टैंक किए, चिमंडे आए। चिमंडे से दो रास्ते निकलते हैं, एक थाने जफरवाल को जाता है, एक थाने फ्लोरे को जाता है। दो स्क्वाड्रन हमारे एक तरफ चले गए, एक स्क्वाड्रन एक तरफ चला गया। तो चिमंडे से आगे निकले तो उधर हमने पोजीशन ली। तो हमारा एक टैंक था, उन्होंने देखा कि सामने इंडिया के टैंक कैमोफ्लेज हुए, उस पर उसने फायर कर दिया। एक किया, दो किया, हिट हो गया टैंक। जब वो टैंक हिट हो गया तो इंडिया ने हमारे पर फायरिंग की। फिर हमें पता चला कि इंडिया इधर पहुंचा हुआ है।
اس کے بعد پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی. ادھر سے ہماری بھی اتنی دیر کو ہماری ایئر بنا لی گئی. 3 منٹ میں ہماری ایئر آ گئی. اوپر سے ایئر نے ان کو تباہ کیا, نیچے سے ہمارے ٹینک تھے, اور ان کا ٹینک 600 ٹینک تھا. اور فخر ہند جو ڈب تھا نا, وہ ان کا سامنے ہمارے تھا, اور 600 ٹینک تھا ایک لائن میں ہی تھے. اور وہ رات تک ٹینک چھوڑ کر, سٹار ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے. ہمارا ایک وہی میجر صاحب تھے, جو میجر افندی صاحب, وہ ریکی کے لیے رات کو نکلے اس ایریے میں. تو ٹینکوں میں دیکھا ٹینک سٹارٹ ہے, مٹھائی لڈو یہ وہ ان کے ٹینکوں میں پڑے, وہ لے آئے. تو 3 دن تک وہ ٹینکس اسی طرح رہے, کیونکہ ہماری ایک یونٹ تھی 25 کیولری, ادھر اور کوئی آرمڈ کی یونٹ کوئی نہیں تھی. ادھر 600 ٹینک کا حملہ تھا. تو اللہ کی مہربانی سے 3 دن تک ہم نے ان کو پیچھے دھکیل دیا. اس کے بعد ہماری ایک 11 کیولری ہے, وہ آ گئی ادھر سیالکوٹ کی طرف سے, بڈیانہ ہے. اس کو وہ اصل میں دوسری جگہ تھے, ادھر سے آئے, تو ان کو پوزیشن کا نہیں پتا تھا. بہرحال وہ ایسا ان کا انڈیا کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے نا ناشتہ جو ہے وہ جی ڈی روڈ پر کرنے کا. تو ان کو جب فائر سے آگے جواب نہیں نہ آیا رات کو, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے پر پاکستان والے اوپر سے گھیرا ڈال لیا ہے, تو وہ ادھر ہی روک گئے. تو اللہ کی مہربانی سے ہماری 25 کیولری آج بھی اس کا نام ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی ٹینک ملے ہیں 25 کیولری کو, الخالد ٹینک, صرف اس لیے کہ چونڈے کی لڑائی میں اس نے یہ کارنامہ دکھایا تھا, 600 ٹینک کا روکا, اور بہترین یعنی یونٹ مانی. تو میں بھی اسی یونٹ کا ایک سپاہی ہوں. تو صحیح, بالکل صحیح کیا. اچھا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سہیل امان صاحب, ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو بری بحری اور فضائی جو بھی ہے, ماشاءاللہ اتنی بڑی قوت ہے ہمارے پاس, جذبہ ایمانی ہے, اور اس ایمانی جذبے کے تحت جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. سر, آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت خطے میں خطرات ہیں ایسے کہ ہمیں چاروں طرف سے کوئی پریشانی ہے اور ہم تیار ہیں؟ دیکھیں, خطرات کا سب سے جو بڑا منبع ہے وہ ہمارے ایسٹ پہ انڈیا ہے, اور انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا جو میجر ایشو اور جو پرابلم ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. کشمیر میں جب یہ 370 کا ایبروگیشن کیا, اور وہ ایک انتہائی ظلم کی داستان ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ, ہماری جو فارن آفس ہے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو اجاگر بھی کیا. لیکن میرا خیال ہے کشمیریوں کی قربانیوں نے, ان کے لہو نے, اور ان کی جو پروٹیسٹ ہے اس نے بھی پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. بٹ یہ کافی نہیں ہے, یہ میں کہتا چلوں. اس کے علاوہ خطے میں ہمیں جو سب سے اہم جو ہمارے لیے سکون کی باعث بات ہے وہ یہ کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہمارے ملک سے ہو گیا. آپ کو یاد ہی ہے ہمارے ملک میں ایک دن میں 2-2, 3-3 دھماکے ہوتے تھے, کئی 100 لوگ ایک دن میں شہید ہو جاتے تھے, 60,000 لوگ. اسٹیٹ بینک کے اندازے سے 120 بلین ڈالرز کا نقصان ہمارے جیسا ملک کہاں متحمل ہو سکتا ہے. پھر ہمارے تقریباً 6,500 جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے, 15,000 کے قریب اپنے لمبس کھوئے. تو ہم اس مرحلے سے نکل گئے. تو ان قربانیوں سے نکل کر جب ہم, اور اس میں بھی ایک ہم بالکل کلیئر بات کر لیں کہ وہ کوئی سر پھرے کوئی دیہاتی لوگ نہیں تھے جو لڑ رہے تھے. they were the best trained terrorists جن کو اندر ڈالا گیا تھا, اور ہمارے دشمنوں نے اس کو اندر ڈالا. اگر کسی کو اس میں کوئی مغالطہ ہے تو کلیئر کر لیں کہ اس میں بھی انڈیا پیچھے تھا اور ہمارے دشمن تھے, تاکہ ہمیں انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کریں, ہمیں پریشان کریں. اور میں ہمیشہ اس کو کہا کرتا تھا کہ یہ ہم انٹرنلی ویکن کر کے کوشش کریں گے, پھر ہمیں یہ ایکسٹرنلی جو آ کے جو ہے ہمیں چیلنج کریں گے, کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا ہمیں انٹرنلی ڈسٹرب کرنے کا تھرو دا ٹیررزم. تو اللہ کا شکر ہے وہ معاملہ ختم ہوا. افغانستان میں بھی حالات بہتر ہونے کو جا رہے ہیں, لیکن ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی 47 میں. یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں ون آفٹر اندر, اور ہمیں یونائٹڈ نیشنز پہ ہم نے خود جا کے ان چیزوں کو جب دیکھا
तो उनको इस चीज पे बावर कराया कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। और अब एक और भी मैं इस सिलसिले में बात कह दूं, आपने पॉइंट छेड़ा तो मार्क माय वर्ड्स के ये जो 370 का एब्रिगेशन है ये इंडिया के अपने गले में पड़ जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट इतनी ज्यादा एक्सेंचुएट हो चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि इसको रोकना मुमकिन नहीं है। और जब आप किसी से ज्यादती का इतना बड़ा तूफान खोल लेते हैं तो दुनिया भी समझती है कि टेररिज्म और फ्रीडम मूवमेंट में क्या फर्क है। तो मेरा ख्याल है हमारे रीजन में ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, सीपैक के मामलात अच्छे चल रहे हैं, अफगानिस्तान में भी चीजें स्टेबल होने को जा रही है, बट हमारा मेन कंसर्न इंडिया और कश्मीर है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं अब्दुल्ला गुल साहब से माशाल्लाह बात करूंगा। आप तहरीक जवानाने पाकिस्तान और कश्मीर हैं, और आप क्या समझते हैं कि उनके क्या मकासद हैं और किस हद तक वो अब तक कामयाबी मिल चुकी है आपको? देखिए, जहाँ तक तहरीक की बात है, तहरीक को तो एक मकसद है कि नौजवान की आदत जो है उसको उभारना है, और पाकिस्तान अंदाज में तहरीक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बस मेहरबानी है, क्योंकि एक ऐसे वक्त के अंदर जब एक निज़ाम डूब रहा है और एक सिस्टम जो है वो कलैप्स तकरीबन कर चुका है, तो दूसरी तरफ एक नया जो सिलसिला है वो कुदरत का निज़ाम है कि एक तरफ सूरज गरूब होता है तो तलू होता है। तो अब एक तलुए निज़ाम जो है वो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है आपके, और मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न जो अभी आपको नए लोगों को लाना है, इंडक्ट करना है, नई लीडरशिप जो है वो आपने देनी है, नौजवान नस्ल को आपने इंडक्ट करना है, उसी तरीके से जैसे कल को एक आदमी जब फौज में आता है तो वो एक जूनियर अफसर होता है और या जूनियर सिपाही होता है, और फिर इसी तरह वो फिर बढ़ता जाता रहता है और एक दिन वो सरबराह बन जाता है। इसी तरीके से हमें जो है नई नस्ल को लाना है, और वही नई नस्ल जो है इंशाअल्लाह ताला जिसका नजरियाती हदूद जो होती हैं वो मजबूत होंगी, जिसकी नजरियाती बुनियादें जो हैं वो पाकिस्तान से जो है लिंक्ड होंगी, और वो पाकिस्तान की कुर्बानी को और पाकिस्तान के मकासद को समझेगा। लेकिन मैं फिर, क्योंकि मैंने ये बात कुवैत में भी कही थी कि हमारी पाकिस्तानी कौम को सबसे ज्यादा साजी की जरूरत, और अगर किरदार साजी आपने न की तो फिर यकीनन मुश्किलात होंगी। एक चीज जो एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब फरमा रहे थे, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया को अगर आप देखें तो 5 अगस्त के बाद वो रीजनल आइसोलेशन का शिकार हो गया। आप देख लें कि नेपाल के साथ जो सीना दोस्ती थी वो कहाँ खड़ी है, इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो उसके हालात है वो किस अंदाज के अंदर, जो बड़े एक जमाने में वो बड़ा नरेंद्र मोदी वहां चला गया और ढाका में खड़ा होके बड़े हाई टॉल क्लेम्स करना शुरू हो गया। उसके बाद श्रीलंका है, चीन है, पाकिस्तान है, वो आपके सामने है, और अंदरूनी तौर पे जो उसको मुश्किलात हैं सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर देख लें, ये बात सारी सही है, दुरुस्त है। लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि जो भी हालिया जो चीन के साथ जो उनका एक मामला शुरू हुआ है वो एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट होगा। उसकी वजह यह है कि अगर भारत जो है जिस तरह माजी में कारगिल के वाक़े के ऊपर उसने अपनी फौज को पाकिस्तान के साथ लगाया, तो फिर उसको पैंगोंग झील के ऊपर जो फिंगर्स थी उसके ऊपर से बहुत सारी जो बॉर्डर एरिया था वो उसको अपने हाथ से जाने दिया था। उसके बाद इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ क्योंकि उसकी फौज डिप्लॉयड है, दूसरी तरफ जो है वो जब लद्दाख के अंदर उसको 1000 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर जो है वो देना पड़ गया। अब जो है वो ले मनाली रोड के ऊपर जिस तरीके से उसने सिविलियंस का रास्ता रोक लिया है और वो डंपिंग कर रहा है, एयर मार्शल साहब इस चीज को जानते हैं, वो बाकायदा डंपिंग कर रहा है। तो उसकी कोशिश ये होगी कि सर्दियों से पहले कोई छोटा मोटा जो है इलाका है वो वागुजार करा ले। बेइज्जती तो बहुत हुई है, देखे ना, लातें पड़ी हैं और वो भी तशरीफों पे पड़ी हैं, तकलीफ तो बहुत होती है। तो दुनिया ने भी देखी है, जगहसाई भी हुई है, और हिंदुस्तान के अंदर खुद उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। लेकिन अब जो है वो उसका कुछ ना कुछ वो इस एग्रेशन के अंदर वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनको यकीनन इस्तेमाल की और ख़ास तौर पे अमेरिका की थपकी है, क्योंकि अमेरिका को इस रीजन के अंदर सवाए हिंदुस्तान की मोहब्बत के और किसी से तो मिल नहीं रही, क्योंकि रीजन के अंदर चीन की तरफ झुकाव है। और ये याद रख ले हिंदुस्तान कि अगर वो चीन के साथ कोई भी मामला में करेगा तो ये ना भूले कि पाकिस्तान जो है वो वहीं खड़ा हुआ है, और ये बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल जाएगी। कश्मीर तो कश्मीर, भारत को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में हमें कौम को मोबिलाइज करना होगा और हमें जंगों से दूर नहीं भागना होगा।
क्योंकि जंगों से दूर भागने से जंगें करीब आ जाया करती हैं। पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी किसी से कम नहीं है। शुरू में जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल साहब फरमा रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारा नंबर गेम के ऊपर तो कभी भी नहीं था। 4 गुना मुल्क आपसे जो है वो बड़ा है, उनके वसाइल बड़े हैं, तो उससे पे तो आप कभी भी नहीं चल सकते। इसका मतलब है कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी जो एक बहादुरी, देखिए ना, एक जज्बा जिहाद होता है, एक जज्बा ईमानी होता है, एक जज्बा जो है वो आपके शहादत होता है। अब हिंदुस्तान के जो लोग मर जाते हैं वो तो मुर्दार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास शहीद के अलावा कोई लफ्ज नहीं है। वो शहादत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। शहीद के लिए वो तो नहीं है ना। शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। लेकिन काश ये कौम जो लहू जो शहीद का है, जिसने हमारी ज़कात अदा की, उस शहीद की जो लहू की कीमत है और उसके जो मकासद हैं, वो ये कौम समझ पाए। बहुत सारे लोग आएंगे और अपने असलाफ की पैरवी करते हुए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान होंगे। वो सिपाही बशीर भी होंगे, वो 25 कैवलरी भी होगी, वो 11 कैवलरी भी होगी, वो 19 लांसर भी होगी, वो जो है ग्रिफन स्क्वाड्रन्स भी होंगे, वो जो है नेवी की जो है वो बाबर भी होगी, गाजी भी होगी, लेकिन और वो अवाम पाकिस्तान भी होंगे। जज्बा दीदनी है, अवाम जो है वो तो हमेशा खड़ी है। सिर्फ हुक्मरानों की जो ये कमजोरियां जो होती हैं, ये इरादों में हुआ करती हैं, ये कभी भी हथियारों में नहीं हुआ करती। जब जहां इरादे मजबूत हों, जहां सेकंड टू नन हो, देखिए ना, पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो सेकंड टू नन की है। हमारे से कोई बरतर नहीं है, क्योंकि हम नजरियाती तौर पे भी सुपीरियर हैं, हम फौजी तौर पर भी सुपीरियर हैं, और हम इखलाकी तौर पे भी सुपीरियर हैं। हिंदुस्तान जो है वक्त के साथ साथ एक माजी बनता जा रहा है, और पाकिस्तान मुस्तकबिल के सितारे की तरह रोशन है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब बात की आपने। सुहेल मान साहब, आपने देखा कि मोहम्मद अब्दुल्ला गुल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पीकर है और उसमें मल्टी सलाहियत हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं इस तरफ आऊँगा। जैसा कि उन्होंने कहा थे, अभी तक आप रिटायर नहीं हुए, आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, बल्कि उससे मुझे याद आया कि FWT फ्रेंड्स वेलफेयर ट्रस्ट, वो इदारा, आप उसके चीफ पैटर्न हैं और माशाल्लाह बड़ा कामयाब अंदाज से तकरीबन दूसरा साल जा रहा है आपको। 2005 में एक महदूद वसाइल के साथ एक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रावलपिंडी में एक हस्पताल का क़याम अमल में लाया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान सैयद खार साहब थे, और उधर जो है सऊदी सफ़ीर, अपना कुवैत के जो सफ़ीर थे पाकिस्तान में, वो भी उन्होंने उसका इनाग्रेशन किया था। उसके बाद सर हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में करोड़ा रुपीस इकट्ठे किए गए, उस अस्पताल को बनाया भी गया। कुछ अर्सा पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, लोगों ने एकदम से हाथ पीछे कर लिया, शायद कुछ ऐसी गलतफहमियां ज़रूर थीं, लेकिन हमने ये देखा कि आपने जब उसको हैंड ओवर आपके हुआ तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही हैं। बल्कि आपने बताया था कि जगह का भी तयन हो गया है, वो 11 मरले की जगह जो है आप वो कितने कनालों में चली गई है, और एक्टिविटी और अस्पताल का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं आप? मामला वही है, जैसे हम नेशनल लेवल पे डिसाइड कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। आपका सिंसेरिटी हो, फेथ हो, यकीन माने कि मेरा कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स वेलफेयर ट्रस्ट में बहुत कम है। मेरे सिर्फ सादत की बात ये थी कि जब पहली ईंट उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए रखी गई तो मैं वहाँ मौजूद था। उसके बाद से मैं सर्विस के मामले में रहा वो, लेकिन इस वक्त अगर हम इग्नोर कर देंगे कुछ नामों को, जो नूर मोहम्मद साहब, वो हमारे लाइफ टाइम पैटर्न चीफ हैं। बड़े मुनहनी से वो इंसान थे, लेकिन उनका जज्बा और जो उनका इंसानी खिदमत थी, उससे स्ट्रॉन्ग चट्टान मैंने नहीं देखा। फिर उसके अलावा जो हमारे बाद में चेयरमैन आए, कायम अली शाह साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। डॉक्टर इफ्तिखार न्याजी हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से मामलात को मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर जफर शेख हैं, सईद शेख हैं, जो डॉक्टर सईद हैं, दे आर ऑल वेरी बिग सपोर्ट फ्रॉम देयर। हम लोग यहाँ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने कि इस हॉस्पिटल ने मेरा अपना ईमान भी बहुत बढ़ाया। वो वक्त जब हम
शायद हॉस्पिटल नहीं चला सकते थे। अल्लाह की ऐसी नुसरत आई कि जब कोविड का ज़माना आया तो इसी हॉस्पिटल के वसातत से हमें खुद अंदाज़ा नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे थे। पहले हम पिंडी का सोचते रहे, लेकिन उसके बाद हालात ये हुए कि हमने पाकिस्तान के हर कोने में, बलूचिस्तान, सिंध के जो दूर दराज के इलाके, उन सब में फ्रेंड्स वेलफेयर ट्रस्ट की टीम्स गई, कोविड को प्रिकॉशन जरूर ली, और अल्लाह का करम यह हो कि एक शख्स भी बीमार नहीं हुआ हमारे हॉस्पिटल में। और जो टीमें जाके ये सब फूड सप्लाईज कर रही थी, और अब तो माशाल्लाह कुएं भी खोद रहे हैं वहाँ थरपारकर के इलाके में, तो वो हॉस्पिटल जो वो हॉस्पिटल नहीं था, तो एक बड़ा अच्छा मुल्की लेवल पे सिचुएशन बन गया। साथ और बहुत ज्यादा जमीन भी अल्लाह ने अता कर दी, जिसके हमारी इस्तात भी नहीं थी, वो सिर्फ एक अल्लाह का करम हुआ। अब हॉस्पिटल को एक्सपेंड कर रहे हैं, 13 डायलिसिस मशीन्स हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेज मिल गई। हमें हकीकत ये मैं बताता हूँ, हमें खुद जाता कि सब कुछ कैसे हो रहा है, ये अल्लाह का एक बड़ा करम है। कुवैत की बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल रही है, और आई थिंक हम चाहेंगे ये कि उसी तरह प्यार से जो है ना हम आगे चले। कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह हम आपको खबर सुनाएंगे कि किसी और शहर में भी फ्रेंड्स वेलफेयर ट्रस्ट का कुछ ना कुछ सिलसिला स्टार्ट करें, लेकिन इंशाल्लाह। सर मेरा ख्याल ये है कि अगर आप एक दौरा कुवैत का कर लें तो कई चीज़ें ऐसे वन पेज पे आ जाएंगी, और मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबी होगी, ख़ास तौर पर वाले बिल्कुल। नाज़रीन, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं इससे आखिरी सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से कर लूँगा कि सर आप हमें बता सकते हैं, चूँकि आप तो बहुत माहिराना राय देते हैं, और मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपकी बात सुन के। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल ज़ाहिर बहुत से हैं, आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला है जो हमें फौरी तौर पर हल करना जरूरी है? सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान का है आम आदमी को इंसाफ ना मिलना, और उसके इंसाफ जिस माशरे में नहीं हुआ करता वहाँ अमन नहीं आया करता, और जिस मुल्क में अमन नहीं होता वहाँ खुशहाली जो है वो दूर दूर तक नहीं होती। इसलिए ये तमाम बातें जो हैं वो लेजिस्लेशन के जरिए काम करना होगा। बहुत सारी बातें आ जाती हैं, कराची को देख लें, जिस जगह भी देख लें, अभी कोयटा का वाकया देख लें, सार्जेंट के हवाले, आप साहिवाल का देख लें। बाहर ये सियासी गुफ्तगू में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आम आदमी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, और पाकिस्तान जो है वो एक है राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। हम जो है अपनी मिल्लत पर कयास जो है अक़वाम मगरिब से नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो हैं जिन्होंने दुनिया को नया निज़ाम देना है। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास वो निज़ाम मौजूद है, और पाकिस्तान इसी वजह से आई ऑफ द स्टॉर्म के अंदर है, और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम हुनर मौजूद हैं, वो तमाम क्वालिटीज मौजूद। आप देख लें कुवैत में बैठ के कितने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, यूरोप में जाते हैं तो अपना डंका बजाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो बेहतरीन साइंसदान और डॉक्टर बन जाते हैं। ये पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान तो ये एक तोहफा है, जैसे मैंने आपको पता है वहां तकरीर में था, इस तोहफे को समझना है, और पाकिस्तान में जिस दिन इंसाफ वाला होगा इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे कि दुश्मन का तो जो मुंह काला होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर पाकिस्तान जो है ना उसको कोई रोक नहीं सकेगा। एंड मैं समझता हूं कि डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड इज एक्चुअली पाकिस्तान ही तो वो मुल्क है जो उसको उस डेस्टिनी पे पहुंचाएगा। इट इज नॉट जस्ट मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड है। पाकिस्तान से वो निजाम जो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन और सलामती जो है वो उसका पैर किया जाएगा, जो सही ट्रू लेटर के अंदर सोशो मॉनेटरी इकोनॉमिक जस्टिस सिस्टम टू द मैनकाइंड, इट्स रियली पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज अ ब्लेसिंग एंड पाकिस्तान इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये हमारी माँ है और माँ की इज्जत कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारा प्रोग्राम आप लोगों की नाज़रीन फीडबैक चाहिए। यकीन तौर पर आपकी फीडबैक से हमें हौसला मिलता है, और हम कुछ ना कुछ और मशाइर पाकिस्तान को अपने खलीज टाइम में लेके आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। तारिक इकबाल को कुवैत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।